Good morning, children. Once again, I am here. Now, how are you? Fine. Now we are starting the same exercise once again. We have done some questions. Now we are doing some more questions. Okay, children. We were doing quadratic equation exercise 4.3. So we have done some questions of exercise 4.3. Now I am doing question number 5. Clear, children? So what is question number 5? In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. इंग्लिश और मैथमेटिक्स में दोनों का सम मिला के उसके 30 मार्क्स. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, अगर उसके मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स और ज़्यादा होते और इंग्लिश में 3 मार्क्स और कम होते, then the product of their marks would have been 210. पहली सिचुएशन क्या है? दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का सम 30 है. उसके बाद उसने बताया अगर मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स और ज़्यादा होते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होते तो उन दोनों का प्रोडक्ट 210 होता. तो फर्स्ट हम इनिशियल मार्क्स चेक करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश. क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.3. Maths marks. Let maths marks be X. English marks be Y. Their sum is also given. X plus Y is given 30. This will be the first equation. अब situation number 2. Had she got 2 marks more in mathematics? Again, X plus 2. मैथ्स में 2 मार्क्स और ज्यादा होते, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होते. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, then their product would be equal to 210. So X plus 2 and Y minus 3 is equal to 210. That is the second equation. Clear, children? So once again I am checking. Had she got 2 marks more in mathematics, 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. So from first equation you can put the value of Y or value of X. You can put here. So value of Y will become 30 minus X. So X plus 2. 30 minus X minus 3 is equal to 210. ये Y की वैल्यू है 30 minus X. So X plus 2 into 27 minus X is equal to 210. इनको मल्टीप्लाई कर दो. 27x minus x square plus 54 minus 2x minus 210. So minus x square plus 25x और 210 में से 54 माइनस हो गया. So what will become 156. 10 minus 4 6 and 20 minus 5 15. Minus 156 equal to 0. So x square minus 25x plus 156 equal to 0. Clear, children? We can do this question by we can do this question by discriminant method and by any other method. So we can do the factor also. Clear, children? X square minus 25x plus 156.
अब मुझे 156 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम 25 होता। एक बार मैं फिर से चेक कर रहा हूं चिल्ड्रन। 27 2 या 54, 30 माइनस 3 27, 27 माइनस एक्स तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 54 एंड 2 माइनस 2x, तो 27x माइनस 2x 25x माइनस एक्स स्क्वायर, और 210 में से 54 माइनस हो गया तो 210 माइनस 54, सो दैट इज 156। क्लियर। अब 156 के ऐसे फैक्टर, तो पहले 156 के फैक्टर करके देखो। 2 7 जा 14 and 2 8 जा 16, again 2 3 जा 6 and 2 9 जा 18, again this one, so this will become a third 2 2 ja 4 3 ja 12 and 13, so 156 can be written 2 into 2 into 3 into 13, so 12 into 13, तो एक फैक्टर हो गया 12 और एक फैक्टर हो गया 13, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 156 होता है, तो ये दो इसके फैक्टर हो गए, so x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। क्लियर चिल्ड्रन। तो टेक x कॉमन, x माइनस 13 माइनस 12 कॉमन, x माइनस 13 इक्वल टू 0, सो x माइनस 13 एंड x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो इधर x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 13। इफ x इज इक्वल टू 12 देन y विल बिकम, यहां से बताओ जरा y की वैल्यू, तो if x is equal to 12 y will become 18, if x is equal to 13 then y will become 17, so there will be two sets of the answer। so ये हो गया मैथ्स के मार्क्स, if maths marks are 12 then English marks will be 18, if maths marks are 13 then English marks will be 17। clear children। So these were two answers। एक बार फिर से क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दे रहा हूं। मैथ्स के मार्क्स x मान लिए, इंग्लिश के मार्क्स y मान लिए, दोनों का सम उसने बताया 30। अगर मैथ्स में 2 मार्क्स और एक्स्ट्रा होते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होते तो उनका प्रोडक्ट 210 होता। फर्स्ट इक्वेशन से हमने सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर ली। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y वी गेट 27 माइनस x, तो मल्टीप्लाइंग दीज टू फैक्टर्स we can get this equation x square minus 25x plus 156। अब इसको हम मिडिल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं और डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने 156 के फैक्टर करके देखे तो ये आगे 12 एंड 13, 12 और 13 का सम 25 होता है और दोनों का प्रोडक्ट 156 होता है। तो आफ्टर गेटिंग फैक्टर्स x minus 13 and x minus 12, so x is equal to 12 or x is equal to 13। So if x is equal to 12, y will be 18. If x is equal to 13, y will be 17। Clear children? So these are the two sets of answer। Now I am taking one more question। Question number 8। A train travel 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। 360 किलोमीटर जाना है और एक यूनिफॉर्म स्पीड से उसे चलना है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो उसे 1 घंटा कम टाइम लगता। ट्रेन को 360 किलोमीटर जाना है यूनिफॉर्म स्पीड से, अगर उसकी हम थोड़ी स्पीड बढ़ा दें, एक्सीलेटर थोड़ा बढ़ा दें, तो वो 1 घंटा पहले ही पहुंच जाती। क्वेश्चन सिर्फ इतना, हर रोज जाती है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आज वो जा रही है x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्लियर चिल्ड्रन। आज ड्राइवर ने
5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दी, थोड़ा एक्सीलेटर बढ़ा दी। जब एक्सीलेटर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, गाड़ी थोड़ी तेज दौड़ेगी, तो टाइम थोड़ा कम लगेगा। क्लियर चिल्ड्रन? तो यूजुअल टाइम t इज इक्वल टू 360 अपॉन x। पहले मैं लिख दूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन be x किलोमीटर पर आवर। क्लियर चिल्ड्रन? सो यूजुअल टाइम कितना लगता है उसे? 360 अपॉन x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, यूजुअल टाइम इट टेक्स 360 अपॉन x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। Now today's situation is change। आज सिचुएशन थोड़ी चेंज। क्या है चेंज? टाइम 1 घंटा कम लगा, अगेन 1 घंटा कम टाइम लगा, स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, x प्लस 5। मैंने दोनों जगह चेंज कर दिया, स्पीड थोड़ा सा बढ़ गई और टाइम 1 घंटा कम हो गया। क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस वाज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। From first equation you can put the value of t here and then solve the value of x. Clear? So do it very fast. So 360 upon x minus 1 is equal to 360 upon x plus 5. इसको इधर लाओ, तो 360 upon x minus 360 upon x plus 5 is equal to 1. So 360 common, 1 upon x minus 1 upon x plus 5 is equal to 1. X plus 5 minus x upon x into x plus 5 is equal to 1. So x is cancelled by x. So 360 into 5 upon x square plus 5x is equal to 1. Now cross multiplying, 365 या 1800 is equal to x square plus 5x. So x square plus 5x plus 18 minus 1800, इस 1800 को उधर ले जाएंगे। Now do the factors of 1800 such that their difference is 5. Children, you all know 45 into 4 क्या होता है? 45 into 4 180 होता है, और 45 into 40 1800 होता है। So 45 and 40. So x square plus 45x minus 40x minus 1800 equal to 0. 1800 के ऐसे दो फैक्टर जिनका प्रोडक्ट 1800 होता है, जिनका डिफरेंस 5 होना चाहिए। तो 45 एंड 40, क्योंकि 45 4 जा 180, इतना हम जानते हैं, लेकिन एक जीरो बढ़ा दें तो 1800 बन जाएगा। सो टेक x कॉमन, x प्लस 45, हियर 40 कॉमन, x प्लस 45 इक्वल टू 0. सो x प्लस 45 एंड x माइनस 40 इक्वल टू 0. So x equal to 40 और x may not be equal to minus 45. स्पीड नेगेटिव नहीं होती, ठीक है? तो x is equal to 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द आंसर। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा। What is the usual time? Distance upon speed. What is the special time? t minus 1, 1 घंटा कम होगी, और स्पेशल स्पीड क्या है? x plus 5, 360 upon x plus 5. तो 360 upon x minus 1 upon 360 upon 360 x minus 360 upon x minus 1 is equal to 360 upon x plus 5. इसको इधर लेके आ गए, माइनस 1 को उधर ले गए, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, x से x कैंसिल हो गया, 365 का 1800 होता है, 1800 उधर जाके माइनस 1800 हो जाएगा। फिर इसके फैक्टर करके देखेंगे, फैक्टर आ गए, x इक्वल टू 40 एंड x इक्वल टू माइनस 45। क्लियर चिल्ड्रन? तो स्पीड ऑफ द ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर,
speed never equal to minus, negative, speed never negative. Clear children? So this was the usual speed of the train. आज स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी थी, तो आज के दिन today's special speed was 45 किलोमीटर पर आवर. Clear children? Now do one more question. Question number 9. Two water tap together can fill a tank in 9 into 3 by 8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. Listen once again, children. Two water taps together can fill a tank in 9 into 3 by 8 hours. दोनों टैप को एक साथ अगर खोल दें तो कितना टाइम लगता है? 9 into 3 by 8 hours. अब दोनों को सेपरेटली खोल दें. बताया उसने द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, एक बड़े वाली टैप है, एक छोटे वाली टैप है, एक टैप का डायमीटर थोड़ा ज्यादा है, एक टैप का डायमीटर थोड़ा कम है. द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours less than the smaller one. मान लो स्मॉलर वन 10 घंटे टाइम लेती है. वंस अगेन, मान लो स्मॉलर वन 50 घंटे टाइम लेती है उस टैंक को भरने में, तो जो बड़ी वाली टैप है उसको वो 40 घंटे में भर देती है, 10 घंटे कम टाइम लगता है. तो स्मॉलर वन मान लो x टाइम लेती है, x आवर टाइम लेती है, तो बिगर वन x माइनस 10 टाइम लेती है. क्लियर चिल्ड्रन? तो टाइम टेकन बाय टू टैप्स टू फिल द टैंक सेपरेटली. क्वेश्चन नंबर 9. Let time taken by two taps smaller one x hours and bigger one y में लिखते हैं इसको x माइनस 10, उसने बताया है x माइनस 10. स्मॉलर टैप x आवर टाइम लेती है, बिगर वन x माइनस 10 टाइम लेती है. अब 1 आवर वर्क कितना होगा? ये तो 10 घंटे का, 10 घंटे में इतना बड़ा टैप भर दिया उसने. 10 घंटे में छोटे वाली टैप ने इतना भर दिया. x आवर टाइम लिया इसे भरने में. 1 घंटे में कितना टाइम लगेगा? 1/x. ये इतना पार्ट है 1/x. वर्क डन इन 1 आवर बाय स्मॉलर वन. क्लियर? वर्क डन. अब मैं उल्टी बात बता रहा हूं, ये तो टाइम लिया, लेकिन 1 घंटे में उसने कितना काम किया, कितना भरा इस टैंक को? 1/x. मान लो 10 घंटे में यहां तक भरा, तो 1 घंटे में इतना सा भरेगा 1/10. ठीक है? So 1 hour work by smaller one. 1 hour work by smaller tap. 1/x hour. 1/x. And 1 hour work by bigger tap. 1/x minus 10. और दोनों का 1 घंटे का टाइम मिला के दोनों का सम उसने क्वेश्चन में क्लियरली बताया 9 into 3 by 8. गिवन दैट अगर दोनों टैब एक साथ चलती हैं, गिवन दैट इसका टाइम और इसका टाइम 1 घंटे का टाइम 1/x plus 1/x minus 10 is equal to 1/9 into 3 by 8 hours. Hours means time, not time. ये है 1 आवर वर्क, ये है 1 आवर वर्क, ये है स्मॉलर वन का 1 आवर वर्क, ये है बिगर वन का स्मॉलर वर्क, और ये दोनों का 1 घंटे का काम.
1 घंटे में कितना काम किया दोनों, ठीक है। सो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 9, 9 8 जा 72 प्लस 3 75, 75/8, तो 8/75 वर्क, नॉट आवर्स, दिस इज वर्क। दोनों टैप ने इतनी देर में कितना काम किया, तो 1/9 इंटू 3/8 वर्क, ये वर्क का काम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, टेक एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 10, सो x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू 8/75, क्लियर चिल्ड्रन। तो 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x is equal to 8/75. I am checking the question once again, children. 9 into 3/8. Yes, clear, children. So 75 2 ja 150x minus 750 is equal to 8x square minus 80x. इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाएंगे, 0 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750, क्लियर चिल्ड्रन। सो 8x स्क्वायर माइनस 80 एंड 150 230 प्लस 750 इक्वल टू 0। थ्रू आउट इसको हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2, डिवाइडिंग बाई 2, तो 115x प्लस 375 इक्वल टू 0, क्लियर। अब हम इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते किसी नंबर से, इससे ज्यादा छोटा ही नहीं हो सकता। अब मुझे 4 का 375 से मल्टीप्लाई करना है, उसके फिर फैक्टर करने हैं, और ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका दोनों का सम 115 आता है। तो पहले हम दोनों का फैक्टर कर लेते हैं, 375, तो 5 7 या 35 एंड 5 5 या 25, 5 15 या 5 3 या, तो ये 375 के फैक्टर हो गए, और 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं इसके साथ, तो ये हो गया 4 इंटू 375 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2। अब मुझे यहां से दो फैक्टर ऐसे चूज करने जिनका 115 सम होता हो, क्लियर चिल्ड्रन। फैक्टर्स 4 into 75, 2 into 2 into 5 into 5 into 5 into 3. So 2 into 2, 4, 4 5 ja 20, 25 ja 100. So 100 into 15. So 115, 115 हो गया। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड से ये और भी बड़ा हो जाएगा, मुझे 115 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप लोग इसे चेक कर सकते हैं अपने आप। सो डू इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड, क्लियर चिल्ड्रन। So 4x square minus 100x minus 15x, 115 इसके फैक्टर हो गए, प्लस 375 इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 25, यहां से 15 कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 25 इक्वल टू 0। यहां से हमने 4x कॉमन लिया चाहिए, 4x, तो यहां से बचा x माइनस 25, और यहां से 15 कॉमन लिया तो x माइनस 25, तो x माइनस 25 एंड 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। सो x विल बी इक्वल टू 25 और x विल बी इक्वल टू 25/4, क्लियर, 25/4।
तो अगर स्मॉलर टैप 25 आवर्स टाइम लेती है, 4x minus 25, yes, clear children, x is equal to 25, x is equal to 25 by 4, तो स्मॉलर वन अगर 25 आवर्स टाइम लेती है तो बिगर वन कितना टाइम लेगी, उससे 10 घंटे कम, 25 minus 10, 15 आवर्स। ये दो क्वेश्चन, ये दोनों आंसर होंगे। क्लियर चिल्ड्रन? 25/4 बहुत छोटा आंसर हो जाएगा, 6 आवर। ये 6 आवर्स टाइम नहीं होगा, 6.25। अगर स्मॉल, तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि स्मॉलर टैप अगर 6.25 मिनट का टाइम ले, 6.25 घंटे का टाइम लेगी, 6.25 आवर्स का टाइम लेगी, तो बिगर वन उससे भी 10 घंटे कम टाइम लेगी, तो बिगर वन का टाइम आएगा माइनस में, और माइनस में आंसर होता नहीं। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। स्मॉलर वन टेक 25 आवर्स एंड बिगर वन टेक 15 आवर्स। क्लियर चिल्ड्रन? सो वंस अगेन I am repeating the same question once again. Work done in 1 hour by smaller one, 1 upon x. Work done in 1 hour by bigger one is 1 upon x minus 10. And the total time is 1 upon total time is total work. Total work is 1 upon 9 into 3 by 8. So that is 8 by 75. Solve करने के बाद ये आया, इसके बाद ये आता है, ठीक है? इसके बाद सॉल्व किया, ये आ गया फाइनल आंसर। फाइनल इक्वेशन हमारी ये है। इसको सॉल्व करने के बाद हमने इसके फैक्टर करके देखे, फैक्टर करने के बाद ये आता 4 into 375 इक्वल टू 100 into 15। क्लियर चिल्ड्रन? 4 into 375 इक्वल टू 100 into 15 ऑल्सो। 100 और 15 का सम 115 होता है, और 100 और 15 का मल्टीप्लीकेशन 4 into 375 होता है। उसके बाद x की वैल्यू 25 आवर्स आ गई, और दूसरी x की वैल्यू आ गई 25/4। ये वाला आंसर हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये आंसर कितना है, 6.25 आवर्स। स्मॉलर वन 6 घंटे का टाइम ले रही है, तो बिगर वन उससे 10 घंटे का टाइम कम कैसे लेगी? -4 आवर टाइम नहीं होता। क्लियर चिल्ड्रन? सो करेक्ट आंसर विल बी स्मॉलर वन टेक 25 आवर्स, बिगर वन टेक 25 minus 10, 15 आवर्स। क्लियर चिल्ड्रन? Now that is the end of the day, end of this class. Thank you and have a nice day. Next time we will be doing next exercise or last exercise of quadratic equation. Clear children? Thank you and have a nice day.